Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine at home and will be doing good. Dear students, I'm your new teacher and I warmly welcome you in the new class, that is the grade first. Okay, so we are going to discuss a few points from your English textbook, and the name of your English textbook is New Images. Okay, a comprehensive English course. Dear students, its author is Vasanti Vasudev. Okay, so this thing should be in our mind, that what is the name of our book and who is the author. Okay, because these points will be asked, that these points are asking by the anybody of only, so these things we should in our mind. Okay, this is the content page of your English book. Through this we come to know that there are 12 chapters which we are going to learn. Okay, through entire the session are which we are going to learn or read throughout the year. So first chapter of your textbook is What Does Little Birdie Say? Okay, it's it has been written by the Alfred Lord Tennyson. Okay, Alfred Lord Tennyson. So this is just actually a poem in which we are going to talk about the animals and how animals take care of their young ones. Okay, so the topic about which we are going to talk is, what does little birdie say? Where baby learns about little birdie. Okay, dear students, it's actually a poem. Okay, and we should first know what's a poem and what is the difference between the poem and the prose. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल पोइम जो होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, वो हम पढ़ते हैं इन्हें रिदमिक वे. ओके, जैसे सॉन्ग्स को रिदम में पढ़ा जाता है, रिदम में गाया जाता है, उसी तरह जैसे राइम्स आपने सीखी होंगी नर्सरी क्लासेस में कि राइम को कैसे पढ़ा जाता है, तो उसी तरह एक पोइम जो होती है उसको रिदमिक वे में पढ़ा जाता है. ओके, एंड जो प्रोज होती है यानी जो स्टोरी होती है, दैट्स रेड इन अ लिस्टेड वे, है ना. जैसे इन सिंपल मैनर में इसको पढ़ा जाता है, जैसे दिस एल्फर्ड, ये है ना, यहाँ पे एल्फर्ड लॉर्ड टेनिसन वाज बॉर्न इन इंग्लैंड. ओके, बट जो पोयम होती है उसको बिल्कुल रिदमिक वे में पढ़ा जाता है. ओके, और जो पोयम होती है उसमें स्टेंजाज होते हैं. स्टेंजा इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ लाइन्स. ठीक है, वो बहुत ब्यूटीफुली तरीके से उसको एक ग्रुप में सेट किया जाता है, तो उसको हम स्टंजा कहते हैं. ठीक है, और जो स्टोरी या प्रोज होता है उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, यानी उसमें स्टंजा ग्रुप ऑफ लाइंस नहीं होती हैं, उसमें पैराग्राफ वाइज चैप्टर जो है बनाया गया होता है. ठीक है, एंड जो पोयम होती है उसको लिखने वाला जो होता है, दैट इज कॉल्ड द पोइट. ठीक है, यानी एक पोयम को पोइट लिखता है और एक प्रोज या स्टोरी को राइटर लिखता है. और जो पोयम होती है उसमें इमेजिनेशन होती है ना, उसमें अपने थॉट्स, पर्सनल थॉट्स होते हैं पोइट के. लेकिन जो स्टोरी होती है उसमें मोरल निकलता है, उसमें कोई नसीहत मिलती है हमें. सो दीज आर some basic difference between the poem and the prose. And one more thing, जो prose जो this poem होती है dear students, उसमें क्या होता है, उसमें rhyming words होते हैं. ठीक है, उसमें rhyming words होते हैं. Rhyming words are the words which sounds same at the end. Okay, so these are some basic points which differs the poem to the prose. Okay, इनको आप memorize कर लीजिएगा, because I am going to ask these questions anytime. So make yourself able to understand these questions very well, these differences very well. Okay, so our topic is, what does the little birdie say? Dear students, can you able to see these points here, connect, reflect, imagine? Dear students, these are given in your English textbook.
इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बच्चे को टॉपिक के साथ कनेक्ट किया जाता है, टॉपिक के मतलब के साथ उसके क्वेश्चंस को ऐसे पूछा जाता है कि बच्चा खुद आंसर करे एंड खुद गेस करे कि हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कनेक्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है, लेट मी आस्क यू टू यू dear students, which bird do you like the most? Name it. You can answer this question, but you मतलब here is not a way कि आप मुझे आंसर दे पाए, but you can write down this question in a separate notebook, okay? क्योंकि धीरे धीरे आफ्टरवर्ड्स मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी जिनका आप आंसर नोटबुक पे लिखते जाएंगे, सो यू कैन मेंटेन ए सेपरेट नोटबुक फॉर दैट, ओके? And you can answer to this question as well. How many birds do you know of? Tell the class about them. Here actually we are not able to take classes, है ना, इन आवर क्लासरूम। तो यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, सिंपली आप इसका आंसर अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं। बिफोर यू रीड वी हैव टू लर्न सम फ्यू पॉइंट्स अबाउट द writer or the poet, okay? The poet is actually here. Alfred Lord Tennyson was born in England. He wrote poems about nature and people and about his country England. टेनिसन जो पोइट थी वो इंग्लैंड में बॉर्न हुई है, एक्चुअली ये मेल है। एल्फ्रेड टेनिसन वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। जो एल्फ्रेड टेनिसन है वो कहाँ पे बॉर्न हुए हैं, इंग्लैंड में बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं नेचर के रिगार्डिंग, हमारे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, हमारे जो लोग रहते हैं, हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हम जहाँ सोसाइटी में रहते हैं, तो उनके रिगार्डिंग टेनिसन ने पोएम्स लिखी हुई है, और अपनी कंट्री जो उनकी कंट्री इंग्लैंड है तो वहाँ उसके बारे में लिखा है, ठीक है। दिस पोएम टॉक्स अबाउट हाउ एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग। हाँ, कहते हैं ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल्स, हाउ they take care of their young ones, just like your parents are taking care very well of yours, है ना? When you have to go to bed, when you have to go to outside, to whom you have to talk, or to whom you don't have to talk, है ना? These are some points, these are some basically some careful things कि पेरेंट्स आपको कभी कभार रोकते भी है किसी के साथ बात करने के लिए, बाहर जाने के लिए, so actually they show their care, they show their love towards you. so इस तरह जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने बच्चे के रिगार्डिंग जो है, बच्चे के टुवर्ड्स वो अपना केयर और लव दिखाते हैं। What do you think a mother bird does for its young ones? आपको क्या लगता है, आपने भी आसपास कभी कभार बर्ड्स को देखा होगा, उनके बच्चों को ऑब्जर्व किया हुआ होगा, तो इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है वो आप आंसर कर सकते हैं। मार्क द करेक्ट बॉक्सेस विद अ टिक, okay? Here is actually a question and there are given some few points as a clue for us. Teaches the little bird wants to fly, यानी आपके हिसाब से जो बर्ड होगा वो अपने बच्चे को क्या नसीहत दे सकता है। Teaches the little ones to fly, वो अपने बच्चों को फ्लाई करना सिखाएगा। Helps them when they are sick, उनको क्या क्या कर सकता है, यानी जब वो सिक होंगे, बीमार होंगे, तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। gives them food, उनको फूड दे सकते हैं। builds a nest for them, उनके लिए एक छोटा सा घोंसला बना सकते हैं। drop them off at school, उनको स्कूल तक ड्रॉप कर सकते हैं। helps them with their homework, और उनकी होमवर्क को कंप्लीट करने में हेल्प करे, ठीक है। इट्स बेसिकली ए क्वेश्चन फॉर यू, सो यू हैव टू आंसर इट बाय योर ओन, ओके। So dear students, I think it's enough for today and I should stop here. From tomorrow, or we can say for tomorrow, we will actually we have to read a poem here. Actually we will read it tomorrow, but for you, you can read it by your own at home. How to read a poem in a rhythmic way, है ना? तो हमें क्या करना है, इस पोएम को हमें रिदमिक वे में पढ़ना है। तो आप इसकी एक प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह टुमारो हम लेक्चर के थ्रू भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। टिल अल्लाह हाफिज़।